Hello students, so welcome to the next section of environment and ecology. In this section I have got two topics to discuss with you. One is ecological niche, the other one is biodiversity. These are two very important topics as far as environment ecology is concerned, and we shall be doing these two topics today. So first of all, ecological niche. In short, I'll say it is the profession of an organism in ecosystem. I gave you certain key. For example, if you have to remember species, you should remember reproduction. If you have to remember biome, you should remember climate. And similarly, if you have to remember ecological niche, you must remember profession. So every species has got a unique functional role or position of a species in its habitat or ecosystem. Let us take an example. Honeybees and butterflies are the pollinators, so their profession is pollination. So in nature, many species occupy the same habitat, but they perform different functions. So it is a possibility. For example, if there is a single tree and on that particular tree different kinds of birds are living, one bird might be insectivorous, one bird might be carnivore, or another bird can be a herbivore. So they are performing different professions, they are performing different functions in the ecosystem or in nature. So point number 3, the functional characteristics of a species in its habitat is referred to as the niche. तो in short, point number 4 में लिखा है habitat is like an address. Definitely it is the address. I told you habitat is where an organism lives, and niche is the profession. काम क्या करता है वो? तो a niche is unique for a species with many species when many species share the habitat. No two species in a habitat can have the same niche. Understand this point, because it will lead to competition, and whensoever there is competition, one is going to be harmed, one is going to be displaced. अगर एक जंगल के अंदर, let us say टेरिटरी के अंदर lion और tiger आ जाते हैं, they are going to compete with each other for prey, and they will definitely fight with each other. So is first column में last point, a species niche includes all its interactions with the biotic and abiotic factors. So it has got habitat niche, where it lives, food niche, what it eats, reproductive niche, how and when it reproduces, physical and chemical niche, temperature, landscape, land slope, humidity, दूसरी चीजों के साथ क्या रिश्ता है. तो आप नीश को किसी भी एस्पेक्ट में समझ सकते हैं. रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में समझ सकते हैं, आप उसको फूड के एस्पेक्ट में समझ सकते हैं. और नीश जो है, ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. हर ऑर्गेनिज्म अपना काम करता रहेगा तो ये इकोसिस्टम चलता रहेगा. एक एग्जांपल लेते हैं, आप पॉलिनेटर्स को हटा दीजिए, food production will decrease or it might even stop. So the pollinators will keep doing their job, and we will keep getting our food. So this is the thing. So niche plays an important role in conservation of organisms. If we have to conserve species in its native habitat, we should have knowledge about the niche requirements of the species and should ensure that all requirements of its niche are fulfilled. तो अगर आपने एक टाइगर को बचाना है, आप एक टाइगर को नेचुरल एनवायरनमेंट में बचाना चाहते हैं, तो आपको पूरा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बचाना पड़ेगा. उसके पास प्रे होना चाहिए, उसके पास वाटर होना चाहिए, उसके पास शेल्टर होना चाहिए, उसके पास रिप्रोडक्शन का साधन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन के चांसेस होने चाहिए. तो एक ऑर्गेनिज्म को जंगल में से बचाकर पिंजरे के अंदर कैद कर देना, ये उसका बचाव नहीं है. नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म को बचाना है, तो उसका पूरा नीश, उसका पूरा वो फंक्शनल एनवायरनमेंट, वो फंक्शनल स्फीयर जो है वो सेव करना पड़ता है. तो ये किसी भी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा होता है. ये बात नोट कर लीजिएगा, कभी भी कंजर्वेशन के ऊपर आपको लिखने को आ जाए तो नीश प्रिजर्वेशन की बात जरूर लिखिएगा. इट विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स.
So let us start with the second portion of our ecology lecture. I am going to start a very important section that is called as biodiversity. एनवायरमेंट इकोलॉजी का सारा जो मकसद है वो बायोडाइवर्सिटी को समझना और बचाना है. तो बायोडाइवर्सिटी जितना भी आगे हम पढ़ेंगे वो बायोडाइवर्सिटी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है. दुनिया की सबसे बड़ी ट्रीटीज जो है एनवायरमेंट की फील्ड में वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए है. इस समय सबसे ज्यादा नुकसान बायोडाइवर्सिटी का ही हो रहा है. तो आपको बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन को अच्छी तरह से समझना है. तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, इस वर्ड को ब्रेकअप करके देखते हैं. बायो लाइफ, डाइवर्सिटी इज वैरायटी. सो वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट और इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट. मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ इट इज मेजर्ड. दो कॉन्सेप्ट्स हैं जी इसमें, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज रिचनेस, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, व्हेन मेनी पॉपुलेशंस लिव टुगेदर दे मेक ए कम्युनिटी. सो नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी, स्पीसीज रिचनेस. एक कम्युनिटी के अंदर कितनी ज्यादा स्पीसीज मिलती हैं. अगर ज्यादा स्पीसीज मिलेंगी हम बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, अगर कम है तो स्पीसीज रिचनेस कम है. फिर यहीं पर जो है वो कॉन्सेप्ट आता है अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी का इसी के अंदर. तो अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम. तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है. लेट अस से ए पॉन्ड. देन बीटा डाइवर्सिटी, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स, usually measured as the change in amount of species between the ecosystem. एक पॉन्ड है, पॉन्ड इकोसिस्टम, उसके साथ एक लैंड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उनके बीच में क्या स्पीसीज का नंबर वेरी करता है. बीटा डाइवर्सिटी तो बिटवीन इकोसिस्टम्स. एंड गामा डाइवर्सिटी, इट इज ए मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम्स विद इन ए रीजन. एक बड़े इलाके के अंदर जो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट इकोसिस्टम हो सकता है, वहां पर ओशियानिक इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकता है. तो एक बहुत बड़े इलाके के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग इकोसिस्टम्स के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है. तो जब आप अल्फा से बीटा की तरफ जाते हैं तो दायरा बढ़ता जाता है. इसको इस तरह से याद रखिएगा. देन कम्स स्पीसीज इवननेस. इट इज द मेजर, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ए स्पीसीज एट ए गिवन साइट. Low evenness indicates that a few species dominate the site. तो एक पर्टिकुलर इलाके के अंदर पाई जाने वाली टोटल स्पीसीज में एक स्पीसीज का प्रोपोर्शन, हिस्सा, प्रोपोर्शन ऑफ ए स्पीसीज एट ए गिवन साइट. लो इवननेस इंडिकेट्स दैट ए फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट. अगर इवननेस कम है तो वहां थोड़ी स्पीसीज मिलेगी. तो वो है नंबर ऑफ स्पीसीज, ये है प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सुना होगा. प्रोपोर्शन का मतलब होता है आउट ऑफ टोटल, समथिंग आउट ऑफ ए टोटल. तो प्रोपोर्शन. तो देन कम्स जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज. अब जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, आपने मैंगोज देखे होंगे, आजकल बहुत तरह के मैंगोज हैं तो सब मैंगोज, बट जेनेटिक डाइवर्सिटी, बहुत तरह तरह के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस और तरह तरह के मैंगोज. ह्यूमन बींग्स में आप देखेंगे चाइनीज, इंडियन अमेरिकन, अफ्रीकान्स, जो निग्रोस एंड यूरोपियंस, कॉकोशॉइड्स. तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो इंडिया हैज मोर देन 50,000 genetically different strains of rice, 1,000 varieties of mangoes. They are mangoes, but due to slight variation in their genetics, so they vary. Genetic diversity allows species to adapt to changing environments. And ये जो जीन्स लेवल पर चेंजेस होते हैं, ये एक स्पीसीज को एक सक्सेसफुल सर्वाइवर के तौर पर डेवलप करते हैं ताकि वो स्पीसीज अपने इलाके के अंदर एडजस्ट हो सके, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सके और डिजायरेबल जीन्स उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो आगे जा सके. जेनेटिक डाइवर्सिटी. देन comes species diversity. It is the ratio of one species population over total number of organisms across all species in the given biome. तो और बड़ा दायरा हो गया. बायोम का मैंने बताया था कि एक इलाके के अंदर वहां के क्लाइमेट के अनुसार ढले हुए
वहां के क्लाइमेट के अनुसार ढले हुए पेड़ पौधे जब मिले तो हम कहते हैं कि ये बायोम हो गया। तो एक बायोम के अंदर रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द, तो एक स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स से 0 वुड बी इनडेफिनिट डाइवर्सिटी, 1 रिप्रेजेंट्स ओनली 1 स्पीसीज प्रेजेंट। तो ये नंबर याद रखिएगा, 1 का मतलब एक ही स्पीसीज है, उसको उसी के पॉपुलेशन के नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी इज ए मेजर ऑफ डाइवर्सिटी विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, और इसी के अंदर स्पीसीज रिचनेस आती है और इवननेस ऑफ स्पीसीज आती है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स अगर आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर नीचे केरला तक का जो इलाका है, द वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो है ये आप वेस्ट बंगाल से शुरू कीजिए और नीचे तमिलनाडु तक आ जाइए, ये पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं। देयर आर मोर देन 2 लाख स्पीसीज इन इंडिया ऑफ विच सेवरल आर कन्फाइंड टू इंडिया। इसको एंडेमिज्म कहा जाता है। जब एंडेमिक का मतलब होता है एक जगह पर बसने वाली स्पीसीज। तो इस तरह से हम स्पीसीज जो है वो डाइवर्सिटी ढूंढ सकते हैं। कितनी, इन शॉर्ट बोलूं तो कितनी स्पीसीज मिलती हैं, जितनी ज्यादा स्पीसीज मिलेंगी हम बोलेंगे उतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जितनी कम मिलेंगी बोलेंगे कम स्पीसीज डाइवर्सिटी है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी एंडेमिज्म इज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ए स्पीसीज बीइंग यूनिक टू ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे मैंने आज ट्रिब्यून के एनालिसिस में बताया था, हिंदू में से एक न्यूज थी न्यूज़पेपर में कि एक ग्लाइडिंग फ्रॉग वो केरला में ही मिलता है, तो इट इज एंडेमिक टू केरला। तो एंडेमिज्म, तो ये एक डिफाइंड जोन के अंदर ही मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर एक ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड ओवर या बहुत बड़े इलाके के अंदर मिले तो हम कहते हैं कि इट इज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंडेमिज्म का उल्टा है, ऑपोजिट है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर मार्केडली इन देयर जेनेटिक मेकअप, do not interbreed in nature. Closely related species, however, have in common much of their hereditary characters. For instance, 98.4% of genes of humans and chimpanzees are same. So, we are only 1.6% ahead as far as genetic makeup is concerned, and we are human beings, they are chimpanzees. लेकिन species एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज इस अर्थ के ऊपर जो है वो हो सकती हैं, और 70% ऑफ द स्पीसीज, तो जो ट्रॉपिक्स का इलाका है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो अर्थ के ऊपर इलाका है, उसमें लगभग 7 मिलियन के आसपास स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और इनमें से जो 70% हैं वो एनिमल्स हो सकते हैं, जो प्लांट्स हैं वो लगभग 22% हो सकते हैं, अंदाजा है। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज नंबर्स इन पर्टिकुलर, दीज आर फॉर एग्जाम्प्लिफिकेशन, दीज आर फॉर रेफरेंस पर्पस। तो लास्ट 2 पॉइंट्स में लिखा है, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, खासतौर पर जो हमारा साउथ इंडिया है, मिडिल ऑफ इंडिया के बाद, क्योंकि मिडिल ऑफ इंडिया के अंदर से ट्रॉपिक गुजरती है, तो 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो हैं वो यहां पर मिलती हैं। तो ये जो ट्रॉपिक्स के इलाके हैं ये बहुत ज्यादा, आप इसको इसी नंबर से आपने याद क्या करना है, नंबर से याद करना है कि ट्रॉपिक्स के इलाके हाई स्पीसीज रिच। वाई ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, एक ऑब्वियस सी एक चीज आती है कि स्पीसीएशन इज ए जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ स्पीसीज बनती हैं। अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, जो टेम्परेट इलाके हैं, टेम्परेट इलाकों का मतलब होता है कि इक्वेटर से ऊपर और पोल से नीचे के जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर बहुत ज्यादा मौसम बदले हैं, जबकि ये जो ट्रॉपिकल इलाके हैं यहां पर ज्यादा मौसम का बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स से ये क्लाइमेटिकली अनडिस्टर्ब्ड इलाके हैं, तो नेचुरली यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन के मौके ज्यादा मिले और स्पीसीज को बढ़ने फूलने के मौके ज्यादा मिले। तो ज्यादा कांस्टेंट एनवायरनमेंट है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है, तो यहां पर नीश स्पेशलाइजेशन हो सकती है, ज्यादा स्पीसीज पैदा हो सकती है, उनके बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, नीश स्पेशलाइजेशन पैदा हो सकती है और उतनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी पैदा हो सकती है।
और इन इलाकों के अंदर सूरज की एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो इसी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इन इलाकों के अंदर काफी ज्यादा है। द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम, बड़ी सीधी सी बात है, वेरी 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 सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। एक इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज अपना अपना काम करती रहेंगी तो वो इकोसिस्टम भी स्टेबल रहेगा। इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए उस इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से आप ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि स्पीसीज डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम को लॉन्गर सर्वाइवल देती है। कारण जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी उतने ज्यादा वहां पर एवोल्यूशन के चांसेस बनेंगे, उतना ज्यादा वहां पर एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट के चांसेस बनेंगे। कुछ स्पीसीज अगर डिस्ट्रॉय होती भी है तो कुछ स्पीसीज उस इलाके के अंदर लगातार सर्वाइवल वाले जीन्स, सर्वाइवल वाले फीचर्स एक्वायर करके रखेंगी और वो इकोसिस्टम लंबे समय तक सर्वाइव करता रहेगा। दिस इज व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पैराग्राफ। देन बायो प्रोस्पेक्टिंग, nations endowed with rich biodiversity explore molecular genetic species level diversity to derive products of economic importance। तो हमें प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, बायो का मतलब लाइफ, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब अंदाजा लगाना। तो जिन जंगलों के अंदर बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी वहां से हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यहां से बायो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू हम ये चीजों का पता करते हैं। देन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपके साथ डिस्कस कर। तो ये जो कीस्टोन स्पीसीज, फाउंडेशन स्पीसीज वाला पैराग्राफ है, इसको आप पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़िएगा। ये पॉइंट्स जरा हैं, ये एडिटिंग के दौरान थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो कीस्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज हुज एडिशन टू और लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड्स टू मेजर चेंजेस इन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन अदर स्पीसीज। एटलीस्ट ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। पहले इस कीस्टोन शब्द का मतलब समझिए। कभी आपने आर्चेस देखी हो, आर्चेस बनती हैं बिल्डिंग्स में, आर्च के टॉप के ऊपर पत्थर होता है जिसको की स्टोन कहते हैं, उसको ठोक के आर्च की स्टेबिलिटी उसको निकाल दें, आर्च डैमेज हो जाएगी। तो ये स्पीसीज एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। इनको इंट्रोड्यूस कीजिए तो भी चेंजेस होंगे, इनको निकाल दीजिए तो भी चेंजेस होंगे। तो इसके एक एग्जाम्पल देते हैं। सर्टन स्पीसीज इन इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमिनिंग द प्रेजेंस ऑफ मैनी अदर स्पीसीज। तो दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस, उनका सर्वाइवल डिपेंड करता है इन स्पीसीज के ऊपर। एक एग्जाम्पल देता हूं, टॉप प्रेडेटर्स। किसी भी, यहां से एलिफेंट काट दीजिएगा, एलिफेंट मिस्टेकन, यहां पर मिस्टेक है, इसको काट दीजिएगा। जितने भी टॉप प्रेडेटर्स होते हैं वो कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, क्योंकि वो नीचे वाली स्पीसीज की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कंजर्वेशन में इन टॉप प्रेडेटर्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कीस्टोन स्पीसीज का लॉस होता है तो पूरा इकोसिस्टम इससे डिग्रेड हो सकता है। एबनी एक ट्री होता है, वो बैट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बैट्स को खत्म कर दीजिए, एबनी खत्म हो जाएगा। तो वो कीस्टोन स्पीसीज हुई। इसके कंपैरिजन में एक एग्जांपल लास्ट 3 लाइंस में, फाउंडेशन स्पीसीज। तो ये डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक इकोसिस्टम के अंदर इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। तो अब फॉरेस्ट में जाएंगे तो पौधे, डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर, उनमें से कोई एक स्पीसीज का पौधा डोमिनेट करे। आप पहाड़ों पर जाएंगे, आपको सीडार फैमिली के पौधे बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपने देखे होंगे पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े टीक के पौधे मिलेंगे, सीडार फैमिली के पौधे मिलेंगे, ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो वो वहां की फाउंडेशनल स्पीसीज हो गई। इकोसिस्टम, कोरल रीफ जाएंगे, वो इकोसिस्टम, वहां कैल्प एल्गी होती है, काई है बहुत बड़ी, इसको खाते हैं लोग। तो वो वहां का एक फाउंडेशन स्पीसीज है, डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है, खाना बनाने वाला। देन कम्स फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब है कि मान लीजिए हमने एक स्कीम शुरू करनी है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, तो उसके पोस्टर के ऊपर, उसके लोगों के अंदर अगर किसी स्पीसीज को एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अब इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जैसे अब जायंट पैंडा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, उनका जो लोगो है उसके अंदर यही बनाया गया है। तो इनको हम लोग कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। तो देन कम्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के हैबिटेट्स, इस अर्थ के ऊपर बहुत तरह के हैबिटेट्स हैं।
और किसी भी हैबिटेट को निर्धारित क्या करता है, वहां का क्लाइमेट, वहां का वेजिटेशन, वहां की ज्योग्राफी, ये बड़े 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी हैबिटेट के अंदर पाए जाने वाले लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को मेंटेन, स्टेबल, सप्लाई करने के लिए। तो लेक, डेजर्ट, कोस्ट, एस्चुरी, वेटलैंड, मैनग्रोव, कोरल रीफ। मैनग्रोव जो है जहां खारा पानी, ताज़ा पानी मिलते हैं, उन कोस्ट के ऊपर जंगल पाए जाते हैं, पौधे होते हैं उनके अंदर। एस्चुरीज जो है जहां पर नदियां समंदरों के अंदर गिरती हैं, तो यहां पर आपको अलग अलग तरह के हैबिटेट्स मिलेंगे। अब जैसे इंडिया में डेजर्ट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट, तो बहुत तरह के इकोसिस्टम्स, बहुत तरह के हैबिटेट्स, तो हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, आपको तरह तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं, उनको चलाती है बायोडाइवर्सिटी। देन प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर रिसोर्स, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन, कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, रिकवरी फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। अगर आप नेचर को उसके हाल पर छोड़ देंगे, इट रिकवर्स प्रीटी वेल। Then biological services, food, shelter, medicine, wood, ornamental plants and so on. Social services, research, education, monitoring, recreation, tourism, cultural values. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए मेगा डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ पर वैसे तो दुनिया का लगभग 23% हिस्सा है, दुनिया का नहीं, इंडिया का अंडर फॉरेस्ट, जबकि हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वो ये कहती है कि 33% एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। दुनिया में हम कंपेयर करें तो हार्डली 2.5% लैंड एरिया इंडिया के हिस्से आता है पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें, लेकिन 7% से ज्यादा स्पीसीज और 18% से ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन इस लैंड के ऊपर रहती है। तो स्पीसीज रिचनेस के मामले में इंडिया 7th है, मैमल्स में 9th है, बर्ड्स में 5th है, रेप्टाइल्स में याद हो जाए अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर और एम्फिबियंस, ये सब मिलते हैं। क्रॉप शेयर हमारा बहुत बड़ा है, तो वी आर ए मेगा डाइवर्स कंट्री। देन बात करते हैं बायोम्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बायोम्स का मतलब होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हो चुके पेड़ पौधे मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ का बायोम है, ये बायोम बन गया। इट इंक्लूड्स द वे इन विच एनिमल्स, वेजिटेशन, सॉइल इंटरेक्ट टुगेदर। इंडिया में मेनली 5 बायोम्स मिलते हैं। आपको इनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ये इंडिया के सेंटर में, आप नॉर्थ ईस्ट कह लीजिए, और उस इलाके के अंदर ये काफी सारे मिलते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई या डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट जो है ये हमको नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा मिलता है। तो ड्राई डेसिडुअस, डेसिडुअस का मतलब होता है वो पेड़ पौधे जो साल में एक बार अपने पत्ते जरूर झाड़ते हैं। वार्म डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, ये गुजरात से लेके राजस्थान से होता हुआ हरियाणा, पंजाब तक आता है। देन कोनीफेरस फॉरेस्ट, कोनीफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है कोन बीरिंग प्लांट्स के फॉरेस्ट। कोन क्या होता है, अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर पाइनस नाम का एक पौधा मिलता है, या और भी उस फैमिली के पौधे मिलते हैं, उनके ऊपर मेल फीमेल फ्लावर्स के गुच्छे लगते हैं, उन गुच्छों को कहा जाता है कोन्स। तो कोनीफेरस प्लांट्स, तो ये पहाड़ों पर मिलते हैं। और एल्पाइन मीडोज, बहुत ऊंची पहाड़ों के ऊपर मीडोज, घास के मैदान मिलते हैं। तो ये 5 तरह के मेजर बायोम्स हैं, रेफरेंस के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं। देन कम्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप सबने सुना है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इस धरती के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हिस्टोरिकली इस अर्थ के ऊपर एक्सटिंक्शंस होती रही हैं। कहते हैं कि 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन, जैसे डायनासोर्स खत्म हुए थे एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट के कारण, तो लेकिन ह्यूमन इंटरफियरेंस के कारण इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज होती जा रही है। और पिछले 100 सालों के अंदर बहुत जबरदस्त स्पीसीज एक्सटिंक्शन हुई है। डोडोज एक्सटिंक्ट हो गए, और सुमात्रन राइनोसिरोस एक्सटिंक्ट हो गया, व्हाइट राइनोसिरोस एक्सटिंक्ट हो गया। और आने वाले 100 सालों के अंदर जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं और भी ज्यादा डैमेज करेंगे। तो प्लांट प्रोडक्शन इससे कम होगी, ओवरऑल एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी, हमारे इकोसिस्टम्स की स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें इसकी वजह से हो सकती हैं। कॉज की बात करें तो मैं इसको यूजुअली कहता होता हूं ईवल क्वार्टेट। 4 चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम प्राइमरीली मान सकते हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, शहर बड़े हो गए, हमने रेलवे लाइंस बिछा दी, हमने सड़कें बना दी, हमने कॉलोनीज बना दी,
तो हैबिटेट लॉस बहुत बड़े लेवल पर हुआ है और इट इज ए मेजर कॉज। इवन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो भी इससे नहीं बच पाया है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन। महात्मा गांधी कहते हैं देयर इज अनफ फॉर एवरीवन्स नीड ऑन दिस अर्थ बट नॉट अनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड, एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लॉस हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का हुआ है। स्किन के लिए, गेम हंटिंग के लिए, ट्रॉफी हंटिंग के लिए, आइवरी के लिए जैसे मारा जाता है तो उसको मारना, हाथी को ट्रॉफी हंटिंग है बेसिकली। तो उसके बाद एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन का मतलब होता है बाहर से स्पीसीज आ जाती हैं, ये एक्सीडेंटली भी आ जाती हैं, इंटेंशनली भी लाई जा सकती हैं, अनइंटेंशनली भी पहुंचती हैं, नेचुरल तौर तरीकों से भी पहुंचती हैं। और कई बार क्या होता है कि बाहर से ये एलियन स्पीसीज आकर इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती हैं कि वो लोकल स्पीसीज को हार्म करना शुरू कर देती हैं। तो एक स्पीसीज की एग्जांपल है, आपको बता रहा हूं, नाइल पर्च। ये ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ी लेक विक्टोरिया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई और इसके अंदर चिचलिड फिश मिलती थी। इसको वहां पर इंडस्ट्री के तौर पर प्रमोट किया जाता था, लेकिन चिचलिड वहां पर पाई जाने वाली बड़ी कलरफुल एक नेचुरल स्पीसीज थी, वो एक्सटिंक्ट हो गई वहां से। तो कैरेट ग्रास, आर्जिमोन, लेंटना, वाटर हायासिंथ, ये ऐसे हैं कि बाहर से आएंगे और कब्जा कर लेंगे इलाकों के ऊपर और लोकल स्पीसीज को बर्बाद कर देंगे। अफ्रीकन कैटफिश को इंट्रोड्यूस किया गया कुछ जगहों पर, वहां पर भी बहुत डेवस्टेशन हुई। तो एलियन स्पीसीज। और तो उसके बाद होता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक मरेगा तो दूसरा साथ में मरेगा, तो इसको हम को एक्सटिंक्शन कह सकते हैं। तो अब जैसे पौधे और पॉलिनेटर्स ये को इवॉल्व हुए हैं, म्यूचुअलिज्म है। अगर आप पॉलिनेटर्स को खत्म कर देंगे तो पौधे मर जाएंगे, हमको फूड नहीं मिलेगा। बाकी एडिशनल कॉजेज भी हैं। पोचिंग। पोचिंग का मतलब ये इवल क्वार्टेट से बाहर है। इवल क्वार्टेट जो है वो मैंने आपको पहले 4 पॉइंट बता दिए। पोचिंग का मतलब होता है इंटेंशनली मारना, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। तो ये सब चीजें। और इसी पॉइंट में लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल कैलामिटीज, कलिंग ऑफ एनिमल के ऊपर एक बात करते हैं। कलिंग का मतलब होता है सिलेक्टिव किलिंग। आपने सुना होगा एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू फैला और सुखना लेक के आसपास जितनी डक्स थी वो सारी मार दी गई, उसको कहते हैं कलिंग करना। ये जो है ये कंजर्वेशन का हिस्सा भी हो सकता है, ये एक्सटिंक्शन का भी कारण बन सकता है। तो कलिंग का मतलब ही है सिलेक्शन। और नेचर भी कलिंग करती है, वीक इंडिविजुअल्स को रूट आउट कर दिया जाता है बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। कलिंग बाय ह्यूमंस, इसको कंट्रोल्ड कलिंग कहते हैं। और ये किसी डिजीज की प्रिवेंशन को जो है वो रोकने के लिए आमतौर पर, या वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को विद इन ए लिमिट मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद कलिंग क्यों करनी पड़ती है? मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए करनी पड़ सकती है, क्रॉप प्रॉपर्टी डैमेज से बचने के लिए कर सकती है, माइंस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर को बचाने के लिए हो सकती है, हर्बीवोर्स घुस जाते हैं, मंकीज, उनको मारा जा सकता है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में मैं पीछे बता चुका हूं कि ये बाहर से आके इन्वेड करती हैं, इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। देन इन्वेजन एंड स्पीसीज रिचनेस के बारे में पढ़ते हैं। द इन्वेजन पोटेंशियली लीड टू एन इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्पीसीज पूल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एक इलाके के अंदर कोई स्पीसीज इन्वेड करती है, वहां स्पीसीज रिचनेस घटेगी या बढ़ेगी? डिपेंड करेगा कि फेज कौन सा है। जब शुरुआत हुई, जब वो स्पीसीज वहां नई पहुंची, तो उनके नंबर्स वहां बढ़ेंगे, तो नेचुरली नई स्पीसीज ऐड हुई है तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। लेकिन समय के साथ जब वो कॉम्पीट करेगी, हो सकता है लोकल लेवल पर रहने वाली स्पीसीज को वो डैमेज कर दे, तो स्पीसीज रिचनेस घट सकती है। लॉजिक पकड़िएगा इसका। तो इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिक्लाइन ऑफ नेटिव स्पीसीज, एंडेमिक्स मारे जा सकते हैं इन्वेजन से, हैबिटेट लॉस हो सकता है, क्रॉप यील्ड घट सकती है, डिग्रेडेशन ऑफ मरीन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, और बायोलॉजिकल इन्वेजन कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज। देन कम स्पीसीज एक्सटिंक्शन। स्पीसीज एक्सटिंक्शन जो है वो पुराने समय से होते आए हैं। ग्लेशिएशन, ग्लेशियर्स आ गए, बर्फ जम गई, मर गए जानवर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट हो गया, डायनासोर्स मर गए, ह्यूमन इंटरफियरेंस, डिफॉरेस्टेशन।
तो स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, स्टोकेस्टिक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड वेदर पैटर्न्स हो गए, डिक्रीज फूड सप्लाई हो गया, डिजीज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, प्रेडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस विल of course depend on the size and degree of genetic diversity and resilience of population is very important। अब जैसे कहा जा रहा है कि इंडिया में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है कोविड-19 का, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी, रेजिलियंस की बात है। तो traits that adversely affect or increase a species vulnerability to extinction due to habitat fragmentation have been identified। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक स्पीसीज को एक्सटिंक्शन के रास्ते पर ले जा सकती हैं? पहला है रेयरिटी और लो अबंडेंस, मिलती ही कम है। इंडिविजुअल्स नहीं है, जो बचे हुए इंडिविजुअल अगर वो मारे जाते हैं तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। देन पुअर डिस्पर्सलेबिलिटी, वो फैल नहीं सकते, डिस्पर्सलेबिलिटी अच्छी नहीं है। प्लांट्स की डिस्पर्सलेबिलिटी बहुत अच्छी है, हवा में उड़ने वाले बीज हैं इनके पास, छोटे बीज हैं इनके पास, तैर के जाने वाले बीज हैं इनके पास, तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे बड़े एनिमल्स में जो है वो डिस्पर्सलेबिलिटी कम हो सकती है। हाई ट्रॉफिक स्टेटस, क्योंकि आपको अगर आप एल्टोनियन पिरामिड्स वाला चैप्टर ऊपर आते आते नंबर कम होता जाता है, जितना ऊपर होगा एक ऑर्गेनिज्म उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। और लो एडल्ट सर्वाइवल रेट, किसी भी वजह से हो सकता है, तो भी एक्सटिंक्शन हो सकती है। नेचुरल एक्सटिंक्शन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टिंग की वजह से भी हुई है। इस अर्थ के ऊपर जो आप इस समय 7 कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, किस समय ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट था पैंजिया, फिर ये टूटा, फिर उसका लोरेशिया और गोंडवाना लैंड 2 बने, फिर वहां से आज के 7 बने। तो इस प्रोसेस के दौरान क्लाइमेट के चेंजेस हुए और नीश के चेंजेस हो गए, फूड चेन्स डिस्टर्ब हो गई, तो वहां से देन क्लाइमेट चेंज। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब है अर्थ इज मेड अप ऑफ प्लेट्स। जैसे आपके घर में फ्लोर बनता है टाइल्स को जोड़ जोड़ के, या जिग्सॉ पजल्स, या दीवार छोटी छोटी, तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है अर्थ, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। उनकी एक्टिविटी की वजह से वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक पैदा होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, जैसे ऑर्डोविसियन ग्लोबल ग्लेशिएशन, आज से 439 मिलियन ईयर्स अगो ऑर्डोविसियन पीरियड के दौरान ग्लेशिएशन हुई। लेट क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन हुई, इसमें भी अर्थ का क्लाइमेट बदला था और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट हो गया था। बाहर से एक उल्का पिंड आकर टकराया और उस जैसे लोनार लेक बताया था मैंने कि एक इसी वजह से बनी लोनार लेक, तो ऐसा ही कोई टकराया और बाहर से आके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पीस ऑफ रॉक, और उसकी वजह से डायनासोर्स मारे गए। तो बहुत सारी एक्सटिंक्शंस इस अर्थ के इतिहास में हुई हैं। आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन ये ह्यूमन बींग्स की वजह से हो ही रही है हमारे आसपास, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इनडायरेक्ट कॉजेज, हैबिटेट लॉस, मॉडिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज। तो आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इस सेक्शन में पेज नंबर 5 से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचुरली मैंने आपको समझा दिया कि इस अर्थ के ऊपर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो अपनी बायोडाइवर्सिटी के कारण ही मेंटेन्ड हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को इस अर्थ के ऊपर बचाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो 2 तरह की हो सकती है, इन सीटू हो सकती है, एक्स सीटू हो सकती है। इन सीटू का मतलब होता है कि ऑन द साइट, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म मिलता है वहीं उसको और उसके सपोर्टिंग नेटवर्क को, सपोर्टिंग सिस्टम को बचाया जाए। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को वहां से ले जाकर किसी और जगह पर उसका सपोर्ट सिस्टम बनाकर वहां पर उसको बचाया जाए। सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स जो उसको जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए। तो इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑब्वियसली नेम्स जस्ट, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी मिलती होगी। तो दुनिया में ऐसे लगभग 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के अंदर हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है, बहुत ज़्यादा एंडेमिज्म होता है। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पर की जा सकती है और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा सकते हैं। नेशनल पार्क्स, जैसे इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 550 से ज़्यादा हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेचर रिजर्व्स बनाए जा सकते हैं। तो इन नोट्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो पुराने हैं, खासतौर पर जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इनके ऊपर एक अलग से मैंने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे।
तो इन एरियाज के अंदर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फैलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग सब प्रोहिबिटेड होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के अंदर, क्योंकि यही सपोर्टिंग सिस्टम होता है। देन प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन इंडिया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। इन्होंने नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के तहत प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है वो बनाया है। इसमें रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे राइट टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा इज इन रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर बैंड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर्स आर इशूड। ऑर्डर्स इशू किए जा सकते हैं और यहाँ पर ये एक्टिविटीज हो सकती हैं। और इन प्रोटेक्टेड एरियाज राइट टू एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड समटाइम्स गिवन टू कम्युनिटीज लिविंग एट द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट who sustain their livelihood partially or wholly from the forest resources or products। मतलब आसपास रहने वाले लोग वहां से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस देखने को मिलता है। इंडिया में पहला जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो सतपुड़ा नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश में, और बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स के रूप में अपग्रेड हुए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज की बात करें तो मैंने आपको बताया 550 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया के अंदर, और इन यहाँ पर हंटिंग, प्रेडेशन जो है वो नहीं होती। अगर होगी तो वो लीगली प्रोसिक्यूशन होती है। और नेचुरल हैबिटेट्स को बचाना, सेंचुरी के अंदर रहने वाले लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन ट्राइबल्स के लिए अलाउड होती है लेकिन स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है, समटाइम्स नॉट अलाउड। बाकी ए सेंचुरी कैन बी प्रमोटेड टू ए नेशनल पार्क, और इंडिया में 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर आप कह सकते हैं, इन न्यूज़, इन टॉक्स रहते हैं। नेशनल पार्क्स आर द एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर देयर कैन बी फ्रीली यूज ऑफ हैबिटेट्स एंड नेचुरल वेयर दे कैन फ्रीली यूज। तो वाइल्ड लाइफ की पूरी फ्रीडम है यहाँ पर, उनका हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्स पूरी तरह से preserved है। The difference between a sanctuary and a national park mainly lies in the vesting of rights of the people living inside. Unlike a sanctuary where certain rights can be allowed, in a national park no rights are allowed. ये अच्छी तरह से दिमाग में छाप लीजिएगा। No grazing, no cutting of trees, no poaching, no hunting बहुत ज़्यादा regulated होती है और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में ये होता है। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास 10 किलोमीटर रेडियस, अंडरलाइन कर लेना, 10 किलोमीटर तक का जो इलाका है उसको इको सेंसिटिव जोन अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारे यहाँ का मेन एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, उसके तहत इसको इको सेंसिटिव जोन, मतलब ये शॉक अब्जॉर्प्शन का इलाका है। यहाँ पर किसी ने आना है, इस इलाके के अंदर गाड़ी पार्क कीजिए, अंदर जाइए, सफारी लेके उनकी, आपने रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, अम्यूजमेंट पार्क बनाना है, रिक्रिएशन प्लेसेस बनानी है, यहाँ बनेगी, अंदर नहीं बनेगी। तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ये बफर जोन का काम करता है, ताकि जो फॉरेस्ट डिप्लीशन है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है, उसको कम से कम रखा जा सके। तो इसको हम कोर बफर मॉडल कहते हैं। सेंटर का इलाका जो हाईली प्रोटेक्टेड है दैट इज कोर, और बाहर का इलाका बफर। उसके बाद आपके पास यहां पर एक क्वेश्चन है, वो आप जरूर देखिएगा, पेज नंबर 6 पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर दे रखा है। देन कम्स बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इस समय, जिसमें से 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स एक इंटरनेशनल एफर्ट है जिसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो कहा जाता है, उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। इनकी लिस्ट जो है वो आप तक आने वाले चैप्टर्स के अंदर पहुंच जाएंगी। जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इनके अंदर नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती है, दे आर बिग स्ट्रक्चर्स, और ये आमतौर पर कोर बफर स्ट्रेटेजी, आपके पास यहाँ डायग्राम है, कोर एरिया
बिल्कुल फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफियरेंस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत क्लियरली डिफाइंड है कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। उसके बाद बफर जोन, रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, यहाँ पर इसलिए लोग जा सकते हैं। और ट्रांजिशन एरिया, सबसे बाहर का इलाका, यहाँ पर सेटलमेंट्स जो हैं वो अलाउड होती हैं। रिक्रिएशन, क्रॉपिंग, सब कुछ यहाँ पर अलाउड होता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। देन एक्सी2 कंजर्वेशन। एक्सी2 कंजर्वेशन का मतलब होता है उसको नेचुरल एनवायरनमेंट से निकालिए, किसी आर्टिफिशियल मैन मेड एनवायरनमेंट में जाके प्रोटेक्ट कीजिए। तो जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक्स, और इवन गैमीट्स को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और हमारे पास नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, दिल्ली ने नेशनल जीन बैंक बनाया है, और जीन बैंक के अंदर सीड्स हो गए, गैमीट्स हो गए, लिविंग टिश्यूज हो गए, उनको प्रिजर्व किया जा सकता है। बोटेनिकल गार्डन्स, इनके अंदर जो है वो प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है, जहां टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन की स्टडी, एक्सोटिक प्लांट्स की स्टडी, जर्म प्लाज्म, लिविंग टिश्यू की स्टडी की जा सकती है, नए हाइब्रिड्स बनाए जा सकते हैं, रेयर थ्रेटन्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जू आप लोगों ने शायद कभी विजिट किया होगा, तो ये सारी चीजें। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। देन कंस्ट्रेंट्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लो प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, लोग नहीं प्रिजर्व करना चाहते। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मॉनिटरी गेन वैल्यू, नॉलेज अबाउट स्पीसीज, इकोसिस्टम इन एडिक्वेटली नोन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ये सारी दिक्कतें हैं। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, चिपको मूवमेंट का आपको बता रहा हूँ। गढ़वाल रीजन में ये मूवमेंट शुरू हुई थी, और आपने सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम सुना हो, तो अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम सुना हो, तो चिपको मूवमेंट। उसके बाद अपीको मूवमेंट, ये साउथ इंडिया में हुई, और ट्री को हक कर लेते थे। चिपको में भी ऐसा ही है, सेम तरह की मूवमेंट है, ट्री को हक कर लेना, अपीको मूवमेंट। तो ये कर्नाटका के एरियाज के अंदर हुई थी। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें, हॉटस्पॉट्स उनको कहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, और नंबर ठीक कर लीजिएगा, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी जगह ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पर हमने क्वालिफाई करना है, तो वहाँ पर स्पीसीज एंडेमिज्म मतलब वहाँ पर कम से कम 1500 तरह की वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीसीज, वैस्कुलर होते हैं जिनके अंदर पानी को कैरी करने के लिए जाइलम फ्लोएम नाम के 2 टिश्यू होते हैं। देन डिग्री ऑफ थ्रेट, और उस इलाके में 70% से ज्यादा ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुका हो। तो ऐसे इलाकों को बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दुनिया में मिले हैं। आपको यहाँ पर 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम बता रहा हूँ। मेडागास्कर, वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर, फिलीपींस, संडालैंड, साउथ ईस्ट एशिया का इलाका, इसमें इंडिया का भी ग्रेट निकोबार का इलाका पड़ता है। बाकी इसमें संडालैंड के अंदर सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया के इलाके पड़ते हैं। कैरिबियन, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, अमेरिका के साथ अटलांटिक ओशन में इंडो बर्मा का इलाका, इंडिया से लेके म्यांमार तक का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, वेस्टर्न घाट्स और से लेके श्रीलंका, ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड केनिया इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स। इंडिया में भी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ईस्टर्न हिमालय, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, भूटान, ईस्टर्न नेपाल का इलाका आता है। इंडो बर्मा, जिसमें पूर्वांचल हिल्स आते हैं। पूर्वांचल मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आप अरुणाचल प्रदेश से नीचे तक आ जाइए नागालैंड तक, तो वहाँ हिल्स की एक श्रृंखला है पूर्वांचल। अराकान योमा, नागालैंड से निकलेंगे अंडमान निकोबार की तरफ आएंगे तो पानी के नीचे डूबी हुई एक पहाड़ों की श्रृंखला है अराकान योमा। ये आपको इसके टॉप्स जो हैं वो आइलैंड्स के रूप में दिखते हैं कई जगह पर। ईस्टर्न बांग्लादेश तक का इलाका, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, और चौथा हॉटस्पॉट सब इंडिया में अंदर माना जाता है संडालैंड, जिसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड का इलाका। तो इंडो बर्मा रीजन की अगर हम बात करें तो ये आप ब्रह्मपुत्रा से लेकर आप चलेंगे तो चाइना का यूनान का इलाका, लाओस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मतलब आप निकलिए नागालैंड से और नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारे इलाके। तो हॉटस्पॉट इलाका है। बहुत तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। नंबर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना। ईस्टर्न हिमालयाज, भूटान, इंडिया, साउथ, सदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न नेपाल का इलाका,
तो अगेन यहाँ पर बहुत तरह की बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी इन द ईस्टर्न हिमालयाज, तो बहुत तरह का फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स यहाँ मिलते हैं। तो 163 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज इस इलाके के अंदर मिलती हैं। 10,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज मिलती हैं और कुछ स्पीसीज के नाम जो है मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन क्वेल, चीयर फीजेंट, और उसके बाद गोल्डन लंगूर यहाँ मिलता है, हिमालयन टाहर मिलता है, पिग्मी हॉग मिलता है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग मिलता है, सांभर स्नो लेपर्ड अंडरलाइन कीजिएगा, ब्लैक बियर, ब्लू शीप, गेंजेटिक डॉल्फिन इस इलाके की नदियों में, वाटर बुफेलो, स्वॉम्प डियर। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका का इलाका, इसको सह्याद्रीज भी कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स को। तो आप गुजरात से शुरू करें, नीचे यहाँ से होता, केरला से होता हुआ, और इट विल गो टू श्रीलंका। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका है और बीच में कुछ इलाके ऐसे हैं जो प्रिस्टीन मतलब अनटच्ड हैं और बहुत यूनिक किस्म की बायोडाइवर्सिटी, जैसे एशियन एलिफेंट हो गया, नीलगिरी टाहर हो गया, ये बकरी की जैसा जानवर है, इंडियन टाइगर, लॉयन टेल्ड मकैक, ये सब एंडेंजर्ड हैं, इंडियन जाइंट स्क्वल। और चौथा इलाका मैंने आपको बताया, नोट्स के अंदर नहीं है, नोट कर लीजिएगा, इसको संडालैंड का इलाका बोला जाता है। इंडिया के अंदर अगर आप इस हिस्से को देखना चाहेंगे तो आपको ग्रेट निकोबार आइलैंड वाले हिस्से को देखने के लिए जाना पड़ेगा, ग्रेट निकोबार का इलाका। तो इन चारों हॉटस्पॉट्स की डिस्क्रिप्शन का एक डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप के अंदर ड्रॉप कर रहा हूं, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो डेफिनेटली उसको देखिएगा। मैप्स उसके अंदर दे रखे हैं, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन उसमें से आप निकाल लीजिएगा। तो दिस वाज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका बार बार रेफरेंस फोर्थकमिंग लेक्चर्स के अंदर आता रहेगा। तो कल आप लोगों का इसका टेस्ट है, अच्छी तरह से इस सेक्शन को प्रिपेयर कीजिए, लंबा टेस्ट होगा थोड़ा सा। तो गुड लक, हैव ए गुड डे, थैंक यू।